Hello, dear all. This is Jit from EnglishB.in. And in the last video, we had discussed about the present tense, the past tense, future tense, the simple forms, and the progressive forms. Now, one of our dear student, Amos, he is of the opinion, sir, instead of mixing up the times present, past, future forms together, let's discuss the forms by one by the time. That means the basic three forms of a present first, then the basic three forms of a past, then the basic three forms of future. Now, among from the basic three forms, one is the simple form, second is the progressive form, the third form is the perfect form. So let's discuss in this video present simple, present progressive, present perfect in using another set of EnglishB.in chart with this called EnglishB.in discussion chart. You also, while watching the video, can go for this kind of chart instead of writing line by line or word by word. This makes you remember, analyze the things better, point wise, tabular, and diagrammatically. So we are talking of by our one of my students Amos's request. Let's talk of the present tense. And as we all know, the moment we say tense means time. So how many times are there? Now there are three times. What are they? Now they are present, past, future. Among that, we are going to discuss the basic three forms of the present time. Now, what do I mean by the forms? Now, under each time, the expression comes under four forms. Four forms. What are the different forms? Simple, simple progressive, perfect, perfect progressive. These are the four forms. And among this, simple, simple progressive, and perfect are most important ones because perfect progressive in some other way can also be converted to simple progressive while speaking, not in grammar, but while speaking or delivering or writing the English. So let's talk of the same two words. One is go, last to last video, and in the last video, eat. But we will discuss only the three forms simple, simple progressive, perfect. So with the go, we have used the pronoun I. With you eat, we had used the pronoun you. So let's make a comparative discussion of the present time. The time is present, and the basic three forms are simple, simple progressive, perfect. Look at this. I never am trying to write the complete word. Simple spelling SIMPLE. Progressive PROGRESSIVE. Perfect PERFECT. If I write the whole word, your brain will start looking at the spelling instead of understanding that one time has four forms simple, simple progressive, perfect, perfect forms. That's why we do diagrammatic chart to make our left as well as the right brains both work beautifully. As we know, the left brain and the right brain or hemilobes of our brain. The left hemilobe is basically a
reader writer because it understands text. The right one is an artist which understands diagrams, tones, music. So all this comes from this. So if we use a chart, this has got both the things, text as well as diagram. That makes you remember better by using both your emilabs. So let's come back to our thing. Let's talk of go using the pronoun this. Present tense, three forms, basic three forms. So present simple, I go. And as we have discussed, we will start with मु जाए, मैं जाता हूं. पर कौन? Go. तो पहले go लिखो. Go is the first place. Second place is the subject, noun or pronoun. The third place is the object. और जो सब्जेक्ट है वो हम बात करते सेंटेंस फॉर्म में हम पूछते थे सबसे पहला चीज हु. और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बताता है आपको ना, बाकी सारे चीजें क्वेश्चंस के आंसर, व्हाट, हाउ, व्हाई, वेयर एंड whom एंड ऑन एंड ऑन. जैसे मैं जाता हूं तो हम शुरू करेंगे जाता हूं का वर्ब है गो, प्रेजेंट सिंपल, सो गो उसी फॉर्म में रहेगा. अगर 5 फॉर्म की बात करें गो का तो गो, वेंट, गॉन, गोइंग एंड गोज. करेक्ट. Verb form 1 present simple, verb form 2 past simple, verb form 3 past participle or perfect form, going that is ing form, verb form 4 and verb form 5 that is singular third person form. This thing is related to the first one. We will discuss it later. So we are omitting these three now and we are discussing only okay. We are using the simple progressive, that is present, progressive, and past perfect. So here the 5 forms of the verb go are this. This is the base form. So when I say I go, it is neither past nor perfect or past participle. And since the work is not continuing right now, जाता हूँ आज कल परसों नरसों तरसों हजार साल भर जाता हूँ, काम करने के लिए ऑफिस जाता हूँ और पढ़ाई के लिए स्कूल जाता हूँ. सो गो. और क्योंकि आई है तो गोज नहीं रहेगा क्योंकि आई फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट पर्सन है. सो आई गो सिंपल ओवर. यहां पे कोई ये ऑक्सिलरी वर्ब का प्लेस होता है, यहां पे भी कुछ नहीं चाहिए. यही चीज अगर प्रोग्रेसिव में रखेंगे प्रेजेंट के तो इट विल बिकम गो का गोइंग. वो जो काम चलता है कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव वो होता है. तो ये होता है कंटिन्यूस CONT और प्रोग्रेसिव PROG जो कि ING फॉर्मेट में रहता है. सो गोइंग, हु इज गोइंग? आई. ना आई इज गोइंग, आम गोइंग, आर गोइंग, क्या होगा ना आई आम गोइंग. सो आई एम गोइंग is the present simple progressive form of the verb go with the pronoun I. मैं जा रहा हूं अभी. The work is on. ମୁଁ ଯାଉଛି. The third form. जस्ट अभी अभी काम खत्म हुआ है. ମୁଁ ଯାଇଛି. मैं गया था. gone. who gone? I gone. अब जो गॉन लग रहा है उसका फॉर्म बताने के लिए हमें यहां पे एक ऑक्सिलरी वर्ब लेना पड़ेगा. तो जनरली हमारे थर्ड परफेक्ट फॉर्म के लिए जो हमारा लगता है ऑक्सिलरी वर्ब्स वो है हैज, हैव और हैड. हम बात करेंगे हैज और हैव प्रेजेंट के लिए और हैड जो है वो पास्ट पार्टिसिपल. तो ये जो चीजें हुए धीरे धीरे बार बार यूज करते हुए क्लियर होता जाएगा और बार बार आप वीडियो देखने से सारी चीजें आप लिंक कर पाओगे. सो यहाँ पे जो ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा आई के लिए वो हाज नहीं है,
वो है हाव। और हार्ड नहीं है क्योंकि हम पास्ट की बात कर ही नहीं रहे। सो आई हैव गॉन। सो वेरी थ्री सिंपल सेंटेंसेस। प्रेजेंट सिंपल गो आई गो, मुंह जाए मैं जाता हूं। प्रेजेंट सिंपल प्रोग्रेसिव गो एंड आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। प्रेजेंट परफेक्ट गोवर के लिए आई लगा के आई हैव गॉन, मैं गया था, मु जाइछि। आई हैव गॉन टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया हूं कभी, पास्ट में। नाउ टॉक ऑफ द सेम थिंग, हम बात करते हैं ईट। नाउ ईट वर्ब के 5 फॉर्म्स आर ईट, एट, ईटन, ईट्स, ईटिंग एंड ईट्स। मैंने जैसे कहा था ईट्स का भी छोड़ देते हैं। ये है हमारा वर्ब फॉर्म 1 प्रेजेंट सिंपल या फ्यूचर सिंपल। ये है पास्ट सिंपल वर्ब फॉर्म 2। नाउ वर्ब फॉर्म 3 परफेक्ट। अब जो परफेक्ट है वो तीनों के लिए लगेगा, प्रेजेंट के लिए भी, पास्ट के लिए भी, फ्यूचर के लिए भी। नाउ आप आईएनजी वर्ब जो कि वर्ब फॉर्म 4 है, वो है कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव फॉर्म, जो कि काम चल रहा है, चल रहा था, चल रहा होगा को बताएगा। चल रहा है प्रेजेंट, चल रहा होगा फ्यूचर, चल रहा था पास्ट। तो फिलहाल हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम बात करें प्रेजेंट। अब प्रेजेंट की बात करेंगे तो ये चाहिए और कुछ और होता तो ये चाहिए था, इट्स चाहिए होता, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ईट और यू के लिए। सो द ईट वर्ब फॉर यू। सो सिंपल चीज होगा, तुम खाते हो, तुम्हें खाओ, यू ईट। शुरू कहां से करना है? जैसे ही मैंने आपको बताया था, सेंटेंस फॉर्मेशन स्टार्ट्स विद द वर्ब। उड़िया में किसी ने कहा तुम्हें खाओ, क्या ना, तुम्हें आंबो खाओ, तुम्हें भात खाओ, तुम आम खाते हो, तुम चावल खाते हो। तो ईट, अब कौन ना, यू, हु इट, ये हु का आंसर है। मैंने आपको बताया था थर्ड फॉर्म अभी हम यूज नहीं कर रहे, लेकिन यहां एक ऑक्सिलरी वर्ब थोड़ा चाहिए रहेगा। तो यू इट ओवर प्रेजेंट सिंपल। खा रहे हो, अब खा रहे हो, ईटिंग चल रहा है अभी, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। ईटिंग हु ईटिंग, यू ईटिंग। अब जब यू ईटिंग आईएनजी फॉर्म आता है, आईएनजी फॉर्म के लिए यहां पे हम लिख सकते हैं आम, इज, आर, वाज, वेयर एंड बी। फ्यूचर के लिए बी, प्रेजेंट के लिए आम, इज, आर, पास्ट के लिए वाज, वेयर और फ्यूचर के लिए विल बी। मैं सिंपली लिख दे रहा हूं, खाली बी की जगह विल बी। तो ये तीनों ऑक्सिलरी फॉर्म का यूटिलाइजेशन होता है। तो अभी आम आई के लिए, इज ही रामो के लिए, तो यू के लिए आर। पास्ट की बात तो हो ही नहीं रहे, फ्यूचर की बात तो हो ही नहीं रहे, सो यहां पे सिंपली आर। सो यू, yes, let's again, eating. So who you are eating. आप खा रहे हो, तुम खा रहे हो, यू बोथ सेज आप भी बोलता है और तुम भी बोलता है, तू भी बोलता है। हमारे लिए जो तीन प्रोनाउंस है इंग्लिश में, एक तुम्हें, तू, आपण, तू, तुम, आप, ईटिंग। सो इसके लिए आर। तो ये कौन सा फॉर्म हुआ ना, प्रेजेंट सिंपल प्रोग्रेसिव। यू ईट क्या हुआ था, प्रेजेंट सिंपल। नाउ हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट, किसके लिए, ईट वर्ब के लिए यू लगा के। चलो करते हैं। सो पहले परफेक्ट मतलब क्या, जो काम खत्म हो चुका है। हाँ, प्रेजेंट मतलब जस्ट खत्म हुआ है, पास्ट मतलब बहुत पहले खत्म हुआ था,
फ्यूचर में कभी खत्म हो जाएगा, वो तीनों में से लिखेंगे। तो पास्ट और फ्यूचर की बात हो ही नहीं रहा है, प्रेजेंट के लिए। और परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो थर्ड फॉर्म इटन, ईट का थर्ड फॉर्म इटन, EATEN। हु इटन ना यू इटन ना। यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो परफेक्ट फॉर्म है उसके लिए हम दो ऑक्सिलरी वर्ब की यूज करते हैं। एक तो है हैज, दूसरा है हैव, तीसरा है हार्ड। हार्ड लगता है किसके लिए ना पास्ट पार्टिसिपल, अभी पास्ट की बात हो नहीं रहा है। जो हाज हैव है प्रेजेंट के लिए वैसे लगेगा, और फ्यूचर होगा तो विल हैव, विल हैव। सो अभी तो फिलहाल ओनली हैव। सो यू हैव इटन, यू हैव इटन। तुम खा चुके हो, તમે ખાઈ સારી છો, ઓવર ઓવર। प्रेजेंट सिंपल यू ईट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यू आर ईटिंग, प्रेजेंट परफेक्ट यू हैव ईटन। किसके लिए? ईट वर्ब के लिए। कौन सा प्रोनाउन? यू के लिए। नाउ द पॉइंट इज दैट वी लर्नड ओवर हियर 1 2 3 4 5 और 6 फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस। किसका टाइम क्या? प्रेजेंट। फॉर्म क्या? तीन। व्हाट आर दे? सिंपल, सिंपल प्रोग्रेसिव, परफेक्ट। वर्ब क्या? एक तो गो, दूसरा वर्ब ईट। पहले वर्ब के सारे फॉर्म्स क्या है? गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोस। ईट का ईट, एट, एटी, एट, ईटन, ईटिंग, इट्स। और इनके लिए प्रोनाउन क्या यूज किए थे? गो के लिए आई, ईट के लिए यू। यू मतलब तुम। तो खाना किसका हो रहा है? तुम, तुम्हारा, आपका, तेरा खाने के बारे में बात हो रहा है। तोर खाइबा, तुमर खाइबा, आपणकर खाइबा। आई गो, मु जीवा कथा कथा होछि। मु जाए, मु जाउछि, मु जाइछि। तुमे खाओ, तुमे खाउछ, तुमे खाइछ। मैं जाता हूं, मैं जा रहा हूं, मैं गया था। तुम खाते हो, तुम खा रहे हो, तुम खाए थे। आई गो, आई एम गोइंग, आई हैव गॉन। You eat, you are eating, you have eaten. Thank you all. This is Jeet from EnglishBeat.in. See you with another video. इसी वीडियो को आप थोड़ा बार बार देखोगे तो ये जो चीजें लिखाई हमने की है, स्टेप बाय स्टेप चार्ट बना है, वो आपका और ज्यादा कॉन्क्रीट और अच्छा हो जाएगा। हमने दो वर्ब गो और ईट यूज किए हैं, दो प्रोनाउंस आई और यू यूज किए हैं। आप ही, शी, रामो, राज वगैरह कर पाओगे, लेकिन थर्ड पर्सन के बारे में मैं जब आपको नेक्स्ट कोई वीडियो में बोल दूँ। थैंक यू ऑल, दिस इज जीत, सी यू वंस अगेन विद अनदर